رائزنگ پاکستان میں وقت ہے آپ کے فیورٹ سیگمنٹ یعنی 3 اچھی خبروں اور آپ کے میسیجز کا. موجود ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مناہل. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. خبریں آ گئیں جی. بہت خبریں بھی آ گئیں. تازہ اوون سے نکل کے آئی. تازہ میسیجز بھی ہیں اور بہت کچھ ہے میرے پاس. اوکے. ایز آلویز. تو پہلی تو خبر کی جانب بڑھیں تو وہ ہماری رائزنگ پاکستان کی فیملی کے بارے میں جو آلریڈی شو میں کئی دفعہ آ چکے ہیں. اوکے. تو پاکستان کے ٹاپ کوپی ماں ہیں جن کا نام سعد منور اور عبدل جوشی ہیں جو آلریڈی شو میں آ چکے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے 6,962 میٹر بلند چوٹی کو سر کیا ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے امریکہ میں اور اس کا نام ہے ماؤنٹ اکونگاگوا. ارے واہ. سعد منور اور جوشی دونوں جن کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں کئی بار ان کو ہم فیچر کر چکے ہیں. مجھے یاد ہے مناہل کے ساتھ نے آج سے 5 سال پہلے ہمارے شو میں سب سے پہلی بار آئے تھے. ایک ینگ لڑکا جس کو ٹریکنگ کا شوق تھا, جس کو پہاڑوں سے عشق تھا, اور پھر دیکھتے دیکھتے اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا, پاکستان کا نام روشن کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. اور مزے کی بات یہ کہ سعد منور ٹریول لاگ بھی ہیں, یعنی وہ سفر نامے بھی لکھتے ہیں. بالکل ٹریول لاگز لکھتے ہیں, سفر نامے لکھتے ہیں. اور عبدل جوشی نا پاتھ فائنڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور عبدل جوشی بھی اور سعد منور بھی ان کا زبردست ڈوو ہے جی. اور انہوں نے یہ چھوٹی سر کی اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دیم. یہ تو ارجنٹینا لکھا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ. ہاں یہ اب پکڑے گیا. کون پکڑا گیا؟ امریکہ ہے یا ارجنٹینا ہے؟ مجھے تو امریکہ کا پتہ ہے. اچھا چلے بھی اس کے اوپر ہماری ٹیم بھی ریسرچ کرے گی, آپ بھی ریسرچ کریں. ساتھ کو بھی تھوڑی دیر میں واٹس ایپ کر کے پوچھ لیں گے کہ بھی تو ارجنٹینا میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, یہ چوٹی کدھر ہے, اس کی ڈیٹیل. تو آنے والے دنوں میں آپ کی اسائنمنٹ سعد منور کو شو میں بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. پوری ان سے کہانی سنتے ہیں ود پکچرز. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا. ڈیفینیٹلی ان سے تو ہم زیادہ ڈیٹیلز پوچھ بھی سکیں گے تو پھر اچھا بھی ہوگا ہمارے لیے. بالکل ٹھیک. اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو بھائی ان لوگوں کے لیے جو کہ لائسنس نہیں بنواتے اور اس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں, ان کو تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ اپنی زندگی اپنی جان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی جان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ تو اس وجہ سے نہیں بناتے کہ وہ کہتے ہیں کہ لمبی قطاریں ہیں, ہم کیا وہاں پر جائیں گے, کیا خواری کاٹیں گے, لیکن ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. اور اسلام آباد میں رہنے والوں کے لیے ابھی, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو آن لائن لرنرز ڈرائیور لائسنس آپ کو آن لائن ہی مل جاتا ہے. اچھا ڈرائیونگ جو لرنرز لائسنس, یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ لرنر لائسنس کے لیے آپ آن لائن جا کے اسے آرام سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہے, میڈیکل ایگزام پاس کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو آن لائن لرنرز پرمٹ رجسٹر ہو جائے گا. اینڈ اسپیشلی آبویسلی یہ بہت اچھا ہے کہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہے. اور جو لوگ اس چیز کے لیے کرتے تھے کہ کیا بنوائیں, ایسی گاڑی چلا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بھائی اب مسئلہ نہیں ہے, آپ آرام سے اس چیز کو کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. سرفراز برق صاحب کی اس میں بڑی کاوش ہے جناب. کچھ عرصہ پہلے ہمارے شو میں آئے بھی تھے, انہوں نے ان ساری چیزوں کا ایک اوور ویو ہمیں دیا تھا. سو بالکل یہ ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے جو آفیسرز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کو اور ڈیجیٹل دنیا کو انکلوڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو, میڈیسن کی دنیا ہو, یا اب آپ دیکھیں جو ہماری ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے کسی بھی شہر کو چلانے کی, کسی بھی ملک کو چلانے کی, اس میں جب ٹیکنالوجی ان ہوتی ہے, امبیڈ ہوتی ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اسلام آباد ٹریفک پولیس کو بھئی مبارکباد. اور میرا خیال ہے کہ دوسرے شہروں کی, خاص طور پہ وہ شہر جہاں پہ ٹریفک کا لوڈ بہت زیادہ ہے, جس میں فیصل آباد ہے, کراچی ہے, آف کورس لاہور ہے, اور ہمارے تھوڑے سے ایسے شہر جو کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں, یعنی ان کا ایریا, جغرافیائی ایریا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آبادی بہت زیادہ ہے, جس طرح سے گجرانوالہ ہے. سو ایسے شہر جو ہیں, اب تو پشاور کے اندر کچھ سڑکوں کی حالات بہتر ہونے کے بعد, لیکن مجھے یاد ہے وقت میں کہ راولپنڈی سے پشاور جانے میں جتنا وقت لگتا تھا اتنا پشاور موٹر وے سے اترنے کے بعد آپ کو یونیورسٹی روڈ سے گزر کے پشاور میں جانے میں اتنا ٹائم لگتا, کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کو امبیڈ کرنا بہت ہی قابل ستائش. بالکل. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو اس کو سمہاؤ رمضان کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا, لیکن میں اگری نہیں کروں گی کیونکہ عبادت کا کوئی بھی مہینہ نہیں ہوتا. بالکل ایبسلیوٹلی رب سے کنیکٹ کرنے کا لیکن رمضان المبارک میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے, آپ زیادہ اسپرچولی کنیکٹڈ. بالکل. تو مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک مزے کی چیز لانچ کی ہے, ہینڈ سینیٹائزنگ تسبیح. ہینڈ سینیٹائزنگ تسبیح, بالکل. یہ کیا کہانی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو لوگ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ وہ جو زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے ہے, اس کو ایز اے ہینڈ سینیٹائزر آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے صرف جب آپ اس کو ہاتھ میں ہی پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھوں کا بیکٹیریا ختم ہو جائے گا. ارے واہ. یس. اور اس کا نام ہے پروٹیکٹ تسبیح.
प्रोटेक्ट तस्बीह, और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी आप तस्बीह करते जाएं और रब को याद करके अपनी रूह का बैक्टीरिया भी खत्म करें, अपनी शख्सियत का बैक्टीरिया खत्म करें, जरासीम खत्म करें रूहानी तौर पर, और साथ ही साथ जिस्मानी तौर पर फिजिकली आपके एक्चुअली हाथ के जो जरासीम में बैक्टीरिया वो इस तस्बीह को रोल करने से वो सैनिटाइज और मजे की बात ये है कि इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी है ताकि आपके हाथ भी थोड़े बहुत मॉइस्चराइज्ड रहें। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और ये लॉन्च हो रही है अब की बार रमजान हो चुकी है तो अब कोई भी सऊदी अरेबिया में तो हमारे लिए जरूर लेकर आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल हम तोहफा एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, ऐसा तोहफा तो मैं बिल्कुल फौरन एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल। तस्वीरों की जाने बढ़ते हैं तो एहतशाम नवाज हैं ढेराई तला से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। ओके जी, एहतशाम को हम वेलकम करेंगे। ढेराई तला, अच्छा ये जगह भाई पहली बार मैंने सुनी है, जरा हमें एहतशाम तफसील बताइएगा। तस्वीर भी बहुत अच्छी है जो आपने भेजी है, लेकिन ये किस सूबे में है, ये आपका गांव, आपका इलाका, ये कहाँ है? मैंने पहली बार नाम सुना है, तो मुझे तजस्सुस हो रहा है कि ये कहाँ पे जगह। और तस्वीरें आपने बहुत प्यारी भेजी हैं एहतशाम, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे भाई वाह, ये तो 100 में से 111 नंबर। बिल्कुल। असद हयात हैं, उनके शहर का हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें तस्वीरें जरूर भेजी हैं। लो जी, असद को हम वेलकम कहेंगे। इन्होंने पेंटिंग बनाई है, वाह जी वाह असद, बड़ा ही बहुत अच्छा है, मजबूत हाथ है, लेकिन नीचे असद पकड़ा गया, वो नीचे लिखा हुआ शायान। ये पेंटिंग बनाई है शायान ने और भिजवा दी है असद हयात ने। ये भाई ध्यान किया करो। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं अगला मैसेज भी उनका आया था जो मनाहिल को बताना भूल गए। वो कह रहे हैं कि मेरे कजन ने बनाई है और मैं भेज रहा हूँ। चलो भाई, ये आपका जुर्माना बच गया, लेकिन बहुत खूबसूरत पेंटिंग है भाई। शायान 100 में से 111 नंबर आपके, और असद थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कजन की चीजें हमें भेजी। जाहिद हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, जाहिद को और इस्लामाबाद वालों को वेलकम करेंगे। अरे वाह भाई वाह। अच्छा जी, इसका नाम रखा है पलूशा। ओए होए होए, बड़ा सीन है भाई का, ओए होए, बहुत प्यारे हैं भाई हम, और हमें पता है इस बात का। ये भी एक चीज बड़ी जरूरी होता है, हम हसीन है और हमें पता है अपने हुस्न। हमें बिल्कुल। दुआ नासिर, मिनहल फातिमा, एम तैमूर, जलालकोट दीपालपुर से। दीपालपुर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, और इन्होंने भी बड़ा प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बना के भेजी हैं। यार मनाहिल कितना प्यारा दरख्त है। मुझे तो ये ड्राइंग लग रही है, पेंटिंग नहीं है ये। हाँ, ड्राइंग, अच्छा चलिए जी, ड्राइंग, हाँ। ओके, और वो सामने स्कूल है, और स्कूल पे क्या बजे हैं जी सुबह के? तो शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं, कोई नहीं। छुट्टी का टाइम है मेरा। हाँ, नहीं 4 बजे तो कोई छुट्टी नहीं होती, 2 बजे हो जाती है। 2 बजे। अस्मा शकील हैं और वो कश्मीर से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। ओके जी, अस्मा को हम वेलकम कहेंगे। अस्बा, बहुत प्यारा नाम है आपका, शाबाश, वेलकम। ये तस्वीर है या पेंटिंग है? ये तो मुझे पेंटिंग सी लग रही है। मुझे भी पेंटिंग लग रही है। हाँ, ये तस्वीर खींची हुई है, लेकिन कोई उस पे फिल्टर लगा हुआ है, पेंटिंग की फील आ रही है। वेरी गुड। लो जी लो, मौसीकी और मोहब्बत भरे फूल और तितली, और वाह जी वाह, बहुत अच्छा, खूबसूरत जिंदगी की अक्कासी है। लो जी, अब इसमें रंग भरना बाकी है, रह गया। बिल्कुल। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। जिब्रान है सिवा गार्डन से, कहते हैं आदाब सर, गुजरते गुजरते आपके शो पर नज़र पड़ी और वज़न कम होने पर बात हो रही थी। तौसीक सर, सालगिरह के दिन तो मैं बहुत उदास होता हूँ कि 1 साल मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह सर आपको देखकर लगता है कि आप तो अपनी सालगिरह वाले दिन 1 साल और जवान हो गए हैं। भाई देखो, सवा गार्डन से नाम है जिब्रान। देखें, हर चीज़ को देखने के 2 रुख हैं। अगर आप हाफ ग्लास फुल देखते हैं या हाफ ग्लास एम्प्टी, एक ग्लास है वो उसमें आधा ग्लास पानी है, अब आप ये कहेंगे कि इसमें आधा ग्लास पानी नहीं है, या आप कहेंगे कि नहीं इसमें आधा ग्लास पानी है। तो ज़िंदगी की हर चीज़ को देखने के 2 रुख हैं। मैं सालगिरह के दिन को इसलिए कहता हूँ कि खुश होना चाहिए कि रब की इनायत है, उसने आपको 1 साल और ज़िंदगी दी। आपने कितनी लाखों सांसें और ली, आपको लाइफ का इर्द गिर्द देखिए कितने लोग हैं जिनके पास सेहत की, खुशियों की, हंसी की, ज़िंदगी की नेमत नहीं है ना, नेमत नहीं रही या नेमत नहीं उनके पास सेहत की है। तो इस तरह से आप देखें तो आपको हाफ ग्लास फुल लगेगा। जिब्रान, कभी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी सालगिरह के दिन
रब का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। बिल्कुल। इफ़त जिबी से कहती हैं, तौसीक सर प्लीज़ अपनी बहन कुरतुलैन साहिबा को गेस्ट के तौर पर बुलाएं और उनसे गुफ्तगू हमें सुनाएं, और कल के प्रोग्राम में जो सेगमेंट आगे पीछे हुए हैं वो बहुत एक मज़े की सरगर्मी थी। अच्छा जी, पहली बात यह कि कुरतुलैन साहिबा बिल्कुल एक दो बार हमारे शो में आ चुकी हैं। आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, ऑनलाइन जाके लिखिए कुरतुलैन अली ऑन राइजिंग पाकिस्तान, तो वो पॉप अप कर जाएगा। और उनका बहुत ही यादगार सेगमेंट था, और अपनी उस्ताद, अपनी बड़ी बहन को इंटरव्यू करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक कल के शो का ताल्लुक है, बिल्कुल मनाहिल अपनी एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से कल नहीं आ सकी थी और हमारा शो सारा आगे पीछे हुआ, लेकिन लोगों ने भाई वो नवेरा ने तुम्हारी जगह गुड न्यूज़ बड़ी मजेदार बहुत अच्छा किया है, बहुत ज्यादा, है ना? हाँ बिल्कुल। नवेरा और मेरा कंपटीशन हो गया, लगता हो गया है, नवेरा का तुम्हारे साथ कंपटीशन हो गया, तैयारी कर लो तो। फौजिया फैसलाबाद से कहती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसमें हर मौजू पर बात होती है। हम आपका प्रोग्राम रोजाना देखते हैं भाई, जहां आप सबकी फरमाइश पूरी करते हैं वहां मेरी भी फरमाइश पूरी करते हैं। हुक्म कीजिए। तो ये बता दें कि आप शो के अलावा क्या करते हैं, उम्मीद है कि आप हमारी फरमाइश पूरी करेंगे। अच्छा, शो के अलावा क्या करता हूँ? शो के अलावा मैं शो की तैयारी करता हूँ, है ना जी। हाँ। और उसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसका भी ताल्लुक मीडिया से ही है, तो इसके अलावा मेरा ये भी काम है। मुन्नी और जवेरिया बदीन से कहती हैं, तौसीक सर मेरे घर वाले तो आपका प्रोग्राम देखते ही देखते हैं, लेकिन आज आपको एक नन्हे नाज़िर से मिलवाते हैं। अच्छा जी। जिसका नाम इरहा है और हम उसे प्यार से मुन्नी कहते हैं। ओके। उसकी उम्र सिर्फ 5 माह है, लेकिन वो टीवी स्क्रीन को बहुत अच्छे से देखती है और सुबह सुबह हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो पहले वो कार्टून देखती है और उसके बाद आपका शो देखती है। अरे वाह भाई, तो मुन्नी को हम खास वेलकम कहेंगे। बदीन में रहती मुन्नी, 5 माह इनकी उम्र है और इरहा इनका नाम है। मुन्नी थैंक यू वेरी मच। हेलो मुन्नी। मुन्नी हमारा शो देखती है, अभी बातें नहीं करती, तो भाई मुन्नी की आपने तस्वीर खींच के हमें भेजनी है जवेरिया, ताकि हम अपने सबसे यंग फैन, है ना जी, जो बदीन में है, उनको हम स्क्रीन पे दिखाएं और उनको हम खास वेलकम करें। तो मुन्नी की तस्वीर का हमें इंतजार रहेगा। अगला जो मैसेज है वो आपके ऊपर है और आपकी एक समहाउ एक एग्जाम है इसके ऊपर, मेरे पे। यस। ओके। तो वो ये है कि तनवीर मलीर से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, नए साल की रेजोल्यूशन में आपने कहा था कि इस साल आपने अपना वजन कम करना है और 86 से 70 पर आना है। 50 साल से ऊपर तो वजन कम करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल खामोशी की ऊंचाई है। कहाँ तक पहुँच गए, आपका वजन कहाँ पर पहुँचा? अच्छा भाई, पहली बात है तनवीर भाई कि बिल्कुल 1 जनवरी को मेरा वज़न 86 किलो था और मैंने रेजोल्यूशन ये किया था कि 19 फरवरी जो कि मेरी सालगिरह है, इसको मैंने टारगेट रखा कि इन तकरीबन 50 दिन में मैंने 70 नहीं 7 का डिजिट टच करना है, यानी 80 समथिंग, यानी 86 से 70 समथिंग पे आना है, 6-7 किलो वज़न का। बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं, चलें सरप्राइज़ रखते हैं कि 19 को मेरा वज़न क्या होगा। लेकिन ये 50 दिन की कहानी भी मैं आपको 19 फरवरी को सुनाऊंगा। और ख़ास तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ख़वातीन में ज़्यादा और हज़रात में भी 50 के बाद जाके वज़न कम करना बहुत दुश्वार हो जाता है। और राइजिंग पाकिस्तान और PTV की हमेशा ये काविश रही है कि हम आपको हेल्दी और फिट रखें। और ये जनवरी फरवरी में जो हमने आपके लिए सिलसिला शुरू किया था कि ये तजुर्बा ट्रेनर काशिफ ने मुझ पे किया, ये तजुर्बा कैसा रहा, इस पर हम आपको डिटेल बताएंगे। ये मुख्तलिफ तरह की डाइट्स जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं, मुख्तलिफ तरह के कंपनियां, बहुत सी फक्कियां, दवाइयां, गोलियां, अद्वियात कि जी वज़न कम करने के लिए ये खाएं वो खाएं, ये सब आपने नहीं करना, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। यही इस पूरी कहानी का मकसद था और 19 फरवरी को हम इसको अनफोल्ड करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आप हेल्दी तरीके से, हेल्दी डाइट और वर्जिश के साथ कैसे अपना वज़न कम कर सकते हैं। 50 दिन में मेरा कितना वजन कम हुआ ये आपको 19 को बताएंगे। That's it, खत्म हो गया। मनाहिल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हमने करवानी है जनाब मुनव्वर हसन साहब से और कुछ जिक्र करना है हमने। किसका जिक्र करना है हमने? मादरी ज़बानों के अदबी मेले का, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में आज से शुरू किया जा रहा है, यानी 16, 17, 18 ये 3 दिन जारी रहेगा। इसकी सारी डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।